Everybody ready? सब तैयार हैं? अरे यीशु मसीह दे खुशी करो महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान। गए हालेलुया 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 आमीन। बोलो हालेलुया आमीन हालेलुया ओ हालेलुया आमीन। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। अरे सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान। सब कहें ओ हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया 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 आमीन। बोलो हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया। ओके Jesus is the winner man, the winner man, glory, the winner man. Jesus is the winner man all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Winner man, a winner man, a winner man, a winner man, winner man, a winner man, winner man, a winner man, a winner man, winner man, a winner man, winner man all the time. But Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. Winner man, a winner man, 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 a winner man, winner man, a winner man, winner man all the time.
man, a win the man, a win the man, a win the man, win the man, a win the man, win the man, win the man, a win the man, win the man, a win the man, win the man all the time. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को जाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बेतलहम के मैदानों में
Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, And all that is within me, bless His holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing a song again. Whatever may pass, whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship
worship your name. Shall we stand to our places and worship Him? क्यों न अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, प्रभु की आराधना करें। We have come to the last month of this year. हम इस वर्ष के आखिरी महीने में प्रवेश किए हैं। Such a lot to thank God for. परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। Unworthy as we have been, still God has loved us. इतने अयोग्य होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। His love never changes. उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Lift up your hands and thank Him this morning. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Give the Lord a clap this morning. प्रभु धन्यवाद। Hallelujah. Even though worship you, give you glory, give you honor, give you praise. Oh, for your glorious power, your faithfulness, oh Lord, your faithfulness, oh Lord. Hallelujah. 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 Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. He has redeemed
blood of the Lamb set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, oh glory Lord, He will crush the devourer, amen Lord, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, oh glory God, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Hallelujah. We are grateful to you this morning, Father. पिता, सुबह हम तेरे प्रति कृतज्ञ हैं। You have been merciful to us. तू हमारे प्रति दयालु रहा है। In spite of our failures, Lord, you have been faithful to us in every area of our life. हमारी दुर्बलताओं के बावजूद भी तू हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा है प्रभु। Our prayer is, Lord, you will keep us faithful to you till the end of time. हमारी प्रार्थना ये है प्रभु कि समय के अंत तक तू हमें विश्वास योग्य बनाए रख। That grace that has saved us will take us through. और वही अनुग्रह, जिस अनुग्रह ने यहाँ तक हमें लाया है, वही अनुग्रह हमें घर तक पहुँचाए। Through many toils and snares we have already come. बहुत से फंदों से, बहुत से गड्ढों से, तकलीफ़ों से हम पार होके यहाँ तक आए हैं। That grace that has brought us so far, that grace will take us through. जिस अनुग्रह ने हमें यहाँ तक लाया है, वही अनुग्रह हमें घर पहुँचाएगा। Hold our hands, O Lord. प्रभु हमारे हाथों को थाम ले। Take us through our life journey. इस जीवन की यात्रा में तू हमें लेकर चल। Bless your people, bless the congregation. अपने लोगों को आशीष दे, सभा के लोगों को आशीष दे। Bless your word to our hearts, give us utterance to speak your word. तेरे वचन को हमारे हृदय के लिए आशीष बना, अपने वचन पर आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. You may be seated, please. आप बैठ सकते हैं। Thank you, Jesus. I trust you are also grateful to God for being with us. मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं। प्रभु हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा है। And when we sit down and examine our own lives, we find that we have not been worthy. और जब कभी भी हम बैठकर इस बात को सोचते हैं, हम एहसास करते कि हम इस योग्य नहीं थे। It's all God's mercy that He's brought us through. ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने हमको इन सब से निकाल के यहाँ लाया है। Amen. Amen. आमीन।
Shall we turn our Bibles to the book of Philippians, आइए अपनी बाइबलों को खोले फिलिपियों की किताब the 4th chapter, और उसका चौथा अध्याय। the epistle of Philippians, फिलिपियों उसका चौथा अध्याय, 4th chapter, reading from verse 6. उसकी 6वीं आयत से हम पढ़ लेंगे। It says like this: Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। And the peace of God, passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Paul is writing to the believers in Philippi. पौलुस फिलिप्पी नगर के विश्वासियों को ये चिट्ठी लिख रहा है। You and I know that most of the letters in the New Testament are written by Paul. आप और मैं इस बात को जानते कि अधिकतर पत्रियां जो नए नियम में लिखी गई वो पौलुस के द्वारा ही लिखी गई हैं। Now he is in jail. और इस वक्त जब वो इसे लिख रहा है तो पौलुस जेल में है। Not for any crime that he had done, कोई ऐसे अपराध के कारण नहीं जो उसने किए हैं, but because of his faith in Christ Jesus. परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के एवज में वो जेल में बंद है। He is brought into question about the resurrection of the saints. वो पवित्र लोगों के पुनरुत्थान के बारे में एक सवाल में वो फंस गया। And like today, even in those days, और जैसे आज होता है उन दिनों में भी वैसे ही whatever the present Lord could do, they did. उनके उस समय के तत्कालिक नियम ने जो कर सका उन्होंने किया। It was not the Gentiles who got him in, it was the Jews. और ऐसा नहीं कि गैर यहूदियों ने पौलुस को कैद में डलवाया, परंतु उसके ही यहूदी भाइयों ने उसको कैद में डलवा दिया। And he's not discouraged. तो भी पौलुस उस बात को लेकर उदास नहीं है। He's writing in this epistle, so many times he says, rejoice in the Lord. और अपनी इस पत्री में, इसी पत्री में कई बार लिखता है, प्रभु में आनंदित, सदा आनंदित रहो। If you take out a little time and find out यदि आप समय निकाल कर इस बात को पता करें what the prison was like in those days when Paul was put in there, कि उन दिनों में जब पौलुस को कैद में डाला गया था तो कैद खाने की हालत क्या थी। that prison was a little lower than the running road. और जो कैद खाने हुआ करते थे वो सामान्य जमीन के ऊंचाई से नीचे वो बनाते थे। It was cold and damp. अंदर नमी और ठंडक होती थी। They say sometimes the water would leak inside. कभी कभी बताते हैं पानी भी उसमें से निकल कर अंदर आ जाता था। And one corner he's sleeping and the other corner he's easing himself. और एक कोने में वो सोता, दूसरे कोने में अपनी दैनिक दिनचर्या को भी वो करता था। Suffering ऐसा पीड़ा for the gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के खातिर। But he has one concern for the church. परंतु उसके पास कलीसिया के लिए एक फिक्र है। And he's pouring his heart. Whenever he writes a letter, he's pouring his heart to the people. और जब कभी भी वो पत्र लिखता तो अपने दिल को उंडेल कर लिखता है। And in this letter, he's encouraging the believers to pray. और इस पत्र में वो विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे लोग प्रार्थना करें। See, people were discouraged because he was inside. देखिए लोग निराश थे
क्योंकि वो कैद खाने के अंदर था। Even one time he writes to Timothy and says, don't be ashamed of my chains. और एक बार उसने तीमुथियुस से कहा कि मेरे जंजीर को लेकर तू निराश मत होना। Stir up the gift which God has given you. उस वरदान को जो परमेश्वर ने तुझे दिया है उसको तू एक बार फिर से चमका ले। Remember, Timothy, it's not Paul, but it is Christ who is building the church. और तीमुथियुस इस बात को याद रख, ये पौलुस नहीं परंतु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है। Amen. Amen. It's not the pastors, it's not them, we are just workers, but God is building his church. और केवल सेवकगण प्रभु के नहीं परंतु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है। Amen. Amen. And his concern is about the body of Christ. और उसका फिक्र मसीह की देह को लेकर है। And our concern also should be first priority to the body of Jesus Christ. और हमारी भी पहली जो हमारी फिक्र है मसीह की देह को लेकर होनी चाहिए। And Paul, writing in his in the Acts of Apostles, we read that Paul is called the Ephesian elders, and he's telling them something from his heart. पौलुस प्रेरितों के काम में पुरनियों को बुलाकर अपने दिल की कुछ बात को उनसे कहता है। He says, listen, I have gone from house to house and preached the word. वो कहता, देखो मैं घर से घर गया सुसमाचार प्रचार करने। I spoken openly in big meetings. मैंने बड़ी सभाओं में खुल के बोला। And spoken to individuals. मैंने व्यक्तिगत लोगों से बात की। Making them strong in the Lord. प्रभु में उन्हें मजबूत बनाया। Amen. Amen. We are going to face another year which is coming in. हम एक और नया साल जिसमें क्या है उसका सामना करने जा रहे हैं। And there are a lot of thoughts which come to our mind. बहुत से विचार हमारे मन में गुजरते हैं। And whether we have a lot of ambitions and dreams for the new year. हमारे अपने महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न नए साल में क्या करेंगे। Sometimes our situations will worry us. कभी जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर चिंता हो जाती है। What will happen tomorrow? क्या आने वाले कल कैसी दुनिया होगी, क्या होगा। So Paul is saying to them, पौलुस उनसे कह रहा है, be not anxious about anything. किसी बात को लेकर चिंता मत करो। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The guy himself is suffering. वो स्वयं ये आदमी दुख में पड़ा है। And he's saying to the church, और कलीसिया से बोल रहा है, don't be anxious. किसी भी बात की चिंता मत करो। Amen. Amen. Jesus also said, यीशु ने स्वयं कहा, don't think of tomorrow. आने वाले कल के बारे ना सोचो। Tomorrow will take care of itself. आने वाला कल खुद अपनी फिक्र कर लेगा। Hallelujah. Hallelujah. As your days, जैसे तुम्हारे दिन होंगे so shall your strength be. वैसे तेरा बल होगा। Amen. Amen. So we put our lives in God's hand. हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। The best insurance company, सबसे बेहतरीन बीमा कंपनी, I remember, मुझे याद है, there was one pastor with us. एक पास्टर हमारे साथ थे। So we were traveling in the train, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे and people ask, what are you doing? और लोग उनसे पूछे कि आप क्या करते हैं। He says, I work for insurance company. उन्होंने कहा, मैं एक जीवन बीमा कंपनी में काम करता हूँ। Which is this insurance company? उन्होंने कहा, कौन सी कंपनी? He says, Eternal Life Insurance Company. उन्होंने कहा, अनंतकालीन बीमा कंपनी। He says, I never heard this one. सुनने वाले ने कहा, इसका नाम तो पहले सुना नहीं है। He says, this is an international company. उसने कहा, आपने सुना नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। And it is giving you insurance for eternity. और ये केवल इस दुनिया में नहीं, अगली दुनिया तक वो बीमा कराता है। Hallelujah. Amen. 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 Life insurance has got two hands like this and the diya here. जीवन बीमा में केवल दो ही हाथ है जिसके बीच में दिया जलता है, Gone. लेकिन वो कभी भी बुझ सकता है। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, no one can pluck you out of my hand. कि कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। Amen. Amen. No one can pluck you out of my Father's hand. कोई तुम्हें मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। Double security we have. दुगनी सुरक्षा प्रभु ने दी है। Don't worry about tomorrow. आने वाले कल को लेकर फिक्र मत कर। Hallelujah. Hallelujah. What we shall eat, what we shall wear, कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, how we will pay our fees, हम कैसे आने वाले समय में बच्चों का फीस पटाएंगे, the rent, कैसे किराया देंगे, and all thoughts. और तमाम विचार और चिंताएं। Jesus said, यीशु ने कहा, your Father knoweth. तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है। Hallelujah. Amen. Your Father knows what you need. तेरे स्वर्गीय पिता को मालूम है तुझे क्या चाहिए। God will surprise you. प्रभु आपको चकित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He has his own source. उसका अपना स्रोत है। Amen. Amen. Sometimes the crows will bring. कभी कभी कौवे भोजन ले आते हैं।
greedy bird. ऐसे लालची पक्षी भी आपके लिए भोजन लाते हैं। Amen. आमेन। One person was saying, एक व्यक्ति कह रहा था, where are the crows gone? आज के जमाने में परमेश्वर के वे कौवे कहाँ चले गए? The other fellow replied, बगल बैठने वाले विश्वासी ने कहा, where are the Elijahs? सवाल ये है, आजकल एलिया कहाँ हैं? Amen. आमेन। If there is a man of God, यदि You are परमेश्वर a का child जन of वहाँ है, God. प्रभु की संतान वहाँ है, it is his responsibility. तो ये परमेश्वर की जवाबदारी है। Amen. Amen. It is his responsibility ये उसकी जवाबदारी है to take care of you. कि वो आपकी फिक्र करे। Not a hair of your hair will fall लिखा है, तेरे सर का एक बाल भी जमीन में नहीं गिरेगा without the knowledge of your heavenly जो Father. तेरे स्वर्गीय पिता को न मालूम हो। Hallelujah. हालेलुया। So he's saying, be careful. Don't be anxious for anything. वो कह रहा, किसी बात की भी चिंता मत करो। He's not saying be irresponsible. वो ये नहीं कह रहा है कि बेफिक्रमंद हो जाओ, लापरवाह हो जाओ। We have to work. हमें मेहनत करना है, But we don't worry for how things will go on for us tomorrow. परंतु आने वाले कल कैसे काम होगा हम उसके लिए फिक्र ना करें। But he says, but in everything, परंतु हर एक बात में, by prayer प्रार्थना में and supplication, और विनती के द्वारा, with thanksgiving, धन्यवाद के साथ, let your request तुम्हारे निवेदन be made known unto God. परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Amen. आमेन। Prayer is the need of the hour. समय की आवश्यकता प्रार्थना है। Amen. आमेन। Every believer should take out a time to pray unto God. हर एक विश्वासी को समय अलग करना है प्रार्थना करने के लिए। So Paul is saying, इसलिए पौलुस कह रहा है, few things he mentions here. कुछ बातों का वो यहाँ उल्लेख करता है। He is not saying preach. वही नहीं कह रहा प्रचार करो। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। He is not giving us a big mission to do. वो कोई बड़ा काम विश्वासियों को नहीं सौंप रहा है। All people, young people, everyone can do this. वो बूढ़े हो, जवान हो, सभी लोग ये काम कर सकते हैं। That is to pray. और वो है प्रार्थना करना। You see, what happens is we go to other people's shop and we see that fellow doing things and we keep quiet there. देखिए, दूसरे के किसी के दुकान में आप पहुंचते हैं और उसको उपासना करते देखकर आप शांत वहां खड़े हो What जाते about हैं। us? लेकिन अपने स्वयं के बारे में क्या है? Are we ashamed in front of our friends to pray? क्या हम अपने दोस्त या मित्रों के सामने प्रार्थना करने में लजाते हैं? I tell you, they will honor you. मैं आपसे कहूं कि यदि आप प्रार्थना उनके सामने करेंगे वो आपका आदर करेंगे। Amen. आमीन। I have got non-Christian friends. मेरे पास भी गैर मसीही दोस्त हैं। One of my old friend, classmate, मेरा एक पुराना दोस्त, मेरा कक्षा का मेरा सहपाठी, he's here in this city. इसी नगर में कहीं वो रहते हैं। Called me for prayer to pray for his wife. अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए उन्होंने बुलाया। We did our BSc together. साथ में हमने BSc की पढ़ाई की थी। He used to smoke. वो धूम्रपान करता था। He's telling my wife. वो कह रहा था मेरी पत्नी से, Whenever we used to see Ajit coming, he used to throw the cigarette. कि जब कभी भी अजीत को आते देखते थे तो हम सिगरेट फेंक देते थे। I was not a preacher. मैं उन दिनों में प्रचारक नहीं था। What made him throw? क्या चीज उसको फेंकने के लिए बाध्य की? It's not me. मैं नहीं, It's the presence of God. परंतु परमेश्वर की उपस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। So we got to be concerned about our friends also. हमें अपने दोस्तों को लेकर भी फिक्रमंद होना है। Amen. आमीन। Set a good testimony before them. एक अच्छी गवाही उनके सामने हम रखें। If you do what they do, यदि हम वो काम करते जो वो करते हैं, wrong things, गलत चीजें, they will lose all respect for you also. वो आपके लिए सारा आदर और सम्मान खो देंगे। Even God will take his hands off. परमेश्वर भी अपना हाथ हटा लेगा। Remember, friends, याद रखें दोस्तों, if God is taking responsibility on your life, यदि परमेश्वर आपकी जिंदगी की जवाबदारी ले रहा है, sometimes we are saved because we are in the fellowship. कभी कभी हम इसीलिए बचे रहते हैं क्योंकि हम संगति में हैं, Because prayer is made for all of you. क्योंकि प्रार्थना सबों के लिए की जाती है। Amen. आमीन। Sometimes you are saved because of your husband or your wife. कभी कभी अपने पति के कारण या कोई अपनी पत्नी के कारण बचा हुआ है। Sometimes the prayers of your parents saves you. कोई अपने माता पिता की प्रार्थना से बचा है। But remember, परंतु याद रखें,
Don't cut your life short. अपनी जिंदगी को संक्षिप्त ना करें, Live for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए जिए। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So he's saying, don't be anxious for it. वो कह रहा सब बात, किसी भी बात की चिंता मत करो। Now, don't go there, ration nahi laye. There is no tea leaf in the house and no sugar. और फिक्र नहीं करने का अर्थ ये नहीं कि घर में दैनिक आवश्यकता की चीजें, चाय पत्ती, शक्कर, कोई भी चीज नहीं है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पैसा भी है पॉकेट में, जेब में पैसा भी है। Be anxious for nothing. लेकिन बाइबल ने कहा है किसी बात की चिंता मत करो, आ जाएगा, वो आ जाएगा। Go and get it. जाएं और लेकर आएं। Amen. आमेन। Don't misinterpret the scripture. पवित्र शास्त्र का गलत अर्थ ना निकालें। By worrying, we will have all kinds of sickness and disease. चिंता करने के द्वारा तमाम किस्म की रोग बीमारी लोगों को हो जाती है। Even doctors will say worrying will bring diabetes. और डॉक्टर भी कहते चिंता करके आपको मधुमेह का रोग हो गया। Cast your burden on Jesus. इसलिए अपनी सारी चिंता का बोझ यीशु मसीह पर डाल दे। Hallelujah. हालेलुया। So he's saying, वो कह रहा है but by prayer परंतु प्रार्थना से and supplication. और निवेदन, That is also a type of prayer. ये भी एक किस्म का प्रार्थना है, विनती In करना। some versions it is written petition. किसी अनुवाद में लिखा है अनुरोध। Like in the court you put a petition. जैसे कोर्ट में आप अपना एक विनती रखते हैं। Let your request, तुम्हारी मांग, तुम्हारी निवेदन, just imagine. कल्पना करें। Paul is saying, make known to God. पौलुस कह रहा है अपने निवेदन परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। Amen. आमीन। You have your need. आपके पास कोई जरूरत है, God is ready to listen. परमेश्वर उस जरूरत को सुनने तैयार है। Amen. Make an atmosphere where we can place a petition before God. एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जब हम प्रभु के सामने अपने निवेदन अब रख सके। Oh, only my wife prays, I don't pray. मेरी पत्नी प्रार्थना करती है, मैं तो नहीं करता। And husband prays and the wife. कोई कहता है मेरे पति प्रार्थना करते, मैं नहीं करती। You got to pray. आपको प्रार्थना करना है। Amen. Anybody can pray. कोई भी प्रार्थना कर सकता है। Make your request अपने निवेदन को रखो, known to God. परमेश्वर को बताओ। Amen. आमेन। One person was telling me about on Bible school. एक व्यक्ति मुझे बाइबल स्कूल के बारे में कह रहे थे। Not this Bible school. यहाँ ये बाइबल स्कूल नहीं। And that Bible school, the principal is staying on top story. और वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो सबसे ऊपर की मंजिल में रहते हैं। And students were staying down. और नीचे की मंजिलों में विद्यार्थी छात्र रहते हैं। So this fellow needed some money to buy soap and oil. और एक विद्यार्थी को, इस भाई को कुछ पैसे की जरूरत थी, कुछ साबुन तेल कुछ खरीदने के लिए। Where is praying, you know? आप जानते वो प्रार्थना करने के लिए कौन सी जगह चुना? In front of principal's doors. उनके प्रिंसिपल के घर के सामने, दरवाजे के सामने। Lord, you know what my need is, Lord. हे प्रभु, तू जानता है मेरी जरूरत क्या है। The soap is also finished, toothpaste is also not. प्रभु, पेस्ट भी खत्म हो गया, साबुन भी नहीं है। And I have not put hair oil for the last 1 week. और एक सप्ताह से सर में मैंने तेल भी नहीं लगा पाया हूँ। So the principal opened the door. प्रिंसिपल साहब ने दरवाजा खोला। ये किसको प्रार्थना कर रहा है? ये तुम जोर जोर से किसको प्रार्थना कर रहे हो? Is it for me or is it for God? ये मेरे को सुना रहे हो कि प्रभु को सुना रहे हो? Sometimes we give some hint for certain things. कभी कभी प्रभु से तो प्रार्थना करते लेकिन इशारा कहीं और करते हैं। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। पंखे भी बहुत महंगे हो गए आजकल। पंखे भी आजकल बहुत महंगे हो गए। Indirectly, अप्रत्यक्ष रूप से पंखा चाहिए। पंखा चाहिए। So before you ask, that thing won't work. इससे पहले आप
मांगे, याद रखें इस प्रकार का दूसरों से प्रार्थना काम नहीं करता। Make your request known to God. लिखा है अपने Amen. निवेदन परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करो। Amen. Amen. Then we will not be disappointed. तब हम हताश या निराश नहीं होंगे। We will not blame one another that fellow never cared for me, they never thought for me. हम एक दूसरे को हम नहीं बोलेंगे कि उसने मेरे को नहीं रोका, उसने मेरी फिक्र नहीं की। Then peace of God will come. तब परमेश्वर की शांति Will rule your heart. जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदयों में राज करेगी। Amen. आमीन। Now petition is not given like this. और निवेदन ऐसे नहीं दिए जाते। This is a petition. ये निवेदन है। Amen. आमीन। फिर लेके चले गए वापस. देने के बाद उसे वापस लेके चले गए। Place it at the feet of Christ. यीशु मसीह के कदमों में सारी चिंता को, प्रार्थना को रख दो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, Prayer is the breath of the soul. प्रार्थना प्राण का सांस है। If we stop breathing, we will die physically. यदि हम सांस लेना बंद कर दे तो शारीरिक तौर से मौत हो जाएगी। If we stop praying, we will die spiritually. यदि हम प्रार्थना करना बंद कर दे तो आत्मिक तौर से मौत हो जाएगी। Why pray? प्रार्थना क्यों? We are coming to that point. हम उस बात में आ रहे हैं। Prayer connects our spirit with God. प्रार्थना हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ में जोड़ देता है। Amen. आमीन। Don't pray 2-minute prayer. 2 मिनट वाली जल्दबाजी की प्रार्थना ना करें। God hears the 2-minute prayer also. प्रभु उस 2 मिनट वाली प्रार्थना भी सुन तो लेता है। Amen. Amen. But we got to come into the level of the spirit where the connection is made. लेकिन हमें आत्मा के उस चरण में आना है जहां पर हम प्रभु से बात कर सकें। Amen. आमीन। Sometimes when you sit for prayer, at least 15 minutes goes like this only. Your कभी thoughts कभी are जब going आप here. प्रार्थना में बैठते हैं तो शुरू के कुछ मिनट तो केवल ऐसे ही गुजर जाते कुछ विचार और इन बातों में। It's when you come around half an hour, और जब प्रभु में प्रार्थना में आधे घंटे बैठ गए, that's the time we are entering in. और वही समय होता है उस प्रार्थना में प्रवेश करने का। Don't get up. उस समय मत उठना। Don't attend a phone call. उस समय कोई फोन नहीं उठाना। It's the time God will speak to you. ये वही समय है जब परमेश्वर तुझसे बातचीत करने तैयार है। Hallelujah. Amen. आमीन। So prayer is the breath of your soul, so don't stop praying. प्रार्थना तेरे प्राण का श्वास है, इसीलिए उसे बंद मत कर। Prayer will keep away the world from you, प्रार्थना दुनिया को तुझसे दूर रखेगी, संसार को, and world will keep you away from prayer. और संसार तुझे प्रार्थना से दूर रखेगा। Now what is this world? ये क्या है संसार? We go out of this world? क्या हम इस संसार से बाहर चले जाएं? No, the things of the world, संसार में की चीजों से अलग हो the जाएं। busyness of the world, संसार की व्यस्तताओं से, friends of this world संसार के दोस्तों से, will keep you away from God. ये सारी चीजें परमेश्वर से आपको दूर रखेगी। Such a powerful thing God has given us. परमेश्वर ने एक ऐसी जबरदस्त ताकतवर चीज हमें दी है। Anyone who is a believer can pray to God. कोई भी जन जो विश्वासी है परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। Even a sinner can call on God. यहां तक कि एक पापी आदमी भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। Oswald J. Smith said, ऑसवर्ल्ड जे स्मिथ बोलते थे, prayer can do what God can do. प्रार्थना वो कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। We are coming to an almighty God. हम एक सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के पास आते हैं। The God who made the universe. जिस परमेश्वर ने इस पूरे मंडल को, सौर भूमंडल को सब बनाया। Recently somebody had posted a video of volcano which is always erupting in Indonesia. हाल ही में किसी ने एक ज्वालामुखी का वीडियो डाला जो बीच बीच में उछलता और उसमें से फूटता रहता है। It's always erupting. हर समय वो फूटकर ज्वालामुखी निकलता है। And because of the drone they could go very closer. और ड्रोन जैसे कैमरों से वो काफी करीब से उसको देख पाए।
fire, liquid fire coming out from the ground. जो तरल आग जो उसमें से निकलकर छींटे बाहर आ रहे हैं, Flowing like a river. एक नदी के समान गला हुआ भूमि बह रहा That है, lava is flowing. लावा आग बह रही है। You look at God's creation. आप परमेश्वर की सृष्टि को जरा देखें, He is almighty. वो कितना शक्तिशाली है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And we are approaching that God. और हम उस परमेश्वर जो इतना शक्तिशाली के पास आते हैं, The one who placed the galaxies in the sky. जिसने आकाश में गैलेक्सीज को यूं ही बिखराया है। The earth is a speck. इस बड़े अंतरिक्ष में पृथ्वी एक छोटा सा कण है। And on that speck you and I live. उस छोटे से कण के अंदर मैं और आप जीते हैं, And He cares for you. और वो उस छोटे से प्राणी आपकी और मेरी फिक्र करता है। Hallelujah. हालेलुया, So mighty God. इतना सामर्थी प्रभु। It's like a father is wanting to give a big gift to his children. ये एक ऐसे पिता के समान है जो अपने बच्चे को बड़ा भेंट इनाम देना चाहता है। So he's saying, son, what do you want? और वो अपने बेटे से पूछता है, बेटे तेरे को क्या पसंद है, तुझको क्या चाहिए? Chocolate. और बच्चा बोलता है, मुझको चॉकलेट चाहिए। He has something very big in his mind. पिता के मन में तो कुछ अपने बेटे को बड़ा देने का था। Our God is able to do all things. हमारा परमेश्वर Amen. बहुत कुछ कर सकता है। Amen. आमीन। And prayer is talking with God. और प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। Prayer is communing with God. प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत और वार्तालाप करना है। It is such a simple topic and you all know it, but ये still we इतना need to repeat. सरल टॉपिक है और आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे हमें याद दिलाना जरूरी है। It is so important and we still neglect it. ये इतना आम है, फिर भी हम उसकी उपेक्षा करते हैं। Whom to pray? किससे प्रार्थना करना चाहिए? Question. सवाल है। I'll ask this question. ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। Pray to your Father in heaven. लिखा है, अपने स्वर्गीय पिता जो पिता स्वर्ग में, उससे प्रार्थना करो। Amen. आमीन। Matthew 6 chapter 9 verse says, मत्ती 6 का 9 बोलता है, after this manner you pray. तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, Our Father हे हमारी पिता, who art in heaven, तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Amen. आमीन। Pray to the Father in heaven. स्वर्ग में जो हमारा स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। Matthew 6 says, मत्ती 6 का 6 कहता है, and thou when thou prayest, enter into the closet. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। When thou hast shut the door, pray to the Father who is in secret, and the Father who is in secret shall reward you openly. और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Amen. आमीन। So the Bible encourages us to Bible. pray to the right person. हमें प्रोत्साहित करती है कि जब कभी हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना सही व्यक्ति से, प्रभु सही परमेश्वर से करें। Now, sometimes we made a sort of a type of prayer which we shout too much upon God. और कई बार हमने एक आदत सी हो गई है, हम ऐसी प्रार्थना बना ली जिसमें हम चिल्लाते हैं परमेश्वर के ऊपर कुछ करने के लिए। Anyway, God hears that also. और तो भी परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। How do you talk to a person? हम एक व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, That's the way you got to pray. वैसे ही हमें परमेश्वर से आदर के साथ बात And करना। Jesus was teaching, और यीशु सिखा रहे थे, He's saying, when you pray, परंतु जब तू प्रार्थना करे। Amen. Amen. Not just sending prayer request. केवल प्रार्थना लिखकर भेजना नहीं, That is also good. वो भी अच्छी बात है। But it's not, and they will say praying, और लोग कहते हम प्रार्थना कर रहे हैं, and you are so satisfied. और आप खुश हो जाते कि दूसरे लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं। Sometimes there is big spelling mistake also. और कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है। Praying, that is P-R-E-Y. और शिकार कर रहे हैं, ऐसा अर्थ भी निकल जाता है। Praying,
That is at least that fellow is honest. He's not praying. He's कम not- से कम वो प्रार्थना करने का उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, अच्छी बात है। But always sending requests, not praying yourself. लेकिन हमेशा अपनी प्रार्थना का निवेदन भेजना, स्वयं प्रार्थना नहीं करना। Always sending requests to big organizations. बड़े बड़े मसीही संगठनों को प्रार्थना का निवेदन भेजना केवल, That's not God wants all the time. परमेश्वर हमसे हर समय ये अपेक्षा नहीं करता। Maybe when you are problem, you need some people more to pray for you. हो सकता है कुछ समस्या जब आती तो हमको और भी ज्यादा लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। Yes, there is time. There are times like that. ऐसा समय आते हैं, But not on daily basis. लेकिन दैनिक कामों में, रोजमर्रा में नहीं। When you pray, लिखा है जब तू प्रार्थना करे pray to the Father तो अपने पिता से कर, in my name. मेरे नाम में। Amen. आमीन। John 16:23 says, यूहन्ना 6:23 बोलता है, and in that day you shall ask me nothing. Verily I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. 16:23. यूहन्ना 16:23 में लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Verily, verily, I mean truly, truly I say to you. और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, In that day उस दिन you shall ask the Father in my name. तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे। You know, sometimes your father says, go to shop, buy it. कभी कभी पिताजी बोलते हैं ठीक है जाओ दुकान जाओ और उसको खरीद लो। आप पैसा दो ना, लड़का बोलता है पैसा दो ना, मेरा नाम ले लेना. तो पिताजी बोलते हैं मेरा नाम ले लेना उस दुकान में, He knows him. क्योंकि दुकानदार पिताजी परिचित है। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु ने कहा go to the Father पिता के पास जाओ, in my name. मेरे नाम से जाना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। God will give it to you. और पिता तुम्हें दे देगा। Amen. आमीन। We said, whom to pray? हमने कहा किससे प्रार्थना करनी है Whom not to pray to? और किससे प्रार्थना अब नहीं करनी है। सुनो. ध्यान से सुने। Amen. We do not pray to Mary. हम मरियम से, यीशु की पृथ्वी की माता मरियम से प्रार्थना नहीं करते। Mary is in heaven. मरियम स्वर्ग में है। Amen. आमीन। We do not dishonor her. हम उसका किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करते, But the Bible says, किंतु बाइबल हमको हुक्म ये देती है, what Jesus said, I am saying. यीशु मसीह ने जो हमसे कहा वही बात मैं आपको बता रहा हूं। Jesus said, pray to the Father. यीशु मसीह ने ये कहा कि पिता से जब तुम प्रार्थना करो तो पिता से करना। Amen. आमीन। One mediator between God and man. और कहा एक ही मध्यस्थ है तुम्हारे और पिता के बीच में, Jesus Christ the righteous. और वो यीशु मसीह जो धर्मी है। Amen. आमीन। He is the one who died for us. क्योंकि जान जिसने दी वो यीशु स्वयं ने अपना जान दिया। His name stands. He is उसका God. नाम परमेश्वर, अटल परमेश्वर है। Hallelujah. So with some people pray to Paul and Jude and Dr. Jude. कुछ लोग पौलुस से और जूड से, डॉक्टर जूड नहीं, जूड से प्रार्थना करते, यहूदा से। Because somebody gives you something, some job, and some other saint gives you. That means we are not supposed to pray to dead saints. यानी कि बाइबल के अनुसार जो संत और पवित्र लोग जो मर चुके हैं उनसे प्रार्थना या निवेदन नहीं करना है। Even alive saints. और यदि पवित्र लोग, संत लोग जो जिंदा हैं उनसे भी नहीं करना है। We have to pray to God. हमें प्रार्थना स्वर्गीय पिता से करना है। Do not pray to idols. मूर्तों से, प्रतिमाओं से प्रार्थना नहीं करना है। Bible forbids it clearly. बाइबल स्पष्ट रूप से उसको मनाही करती है। Your conscience also speaks to you. आपका विवेक
आपसे बात करता है, because that voice has been put by God in your life. आपके अंदर एक आवाज जो है वो आवाज परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है। Not on every man on this earth. इस पृथ्वी का एक एक जन के अंदर वो सत्य की आवाज है। Romans 1st chapter, if you read, you will get it. रोमी 1 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है बहुत साफ, God has put this knowledge in every man's heart. कि इस ज्ञान को परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर डाला है। For they see the creation and they say there is a God. और लोग केवल सृष्टि को देखकर ही कहने लग जाते हैं सचमुच परमेश्वर है। Unseen things of God are seen in His creation. परमेश्वर की अनदेखी चीजें उसकी सृष्टि के माध्यम से दिख जाती हैं। Amen. Amen. When there is a thunder, we know there is power. जब बादल गरजता है हम कहते हैं क्या ताकत है। Isn't that so? क्या बात We है? see the waterfall, जब झरने को या पानी को गिरते birds flying, आकाश की ऊंचाइयों में पक्षी उड़ते, green trees, हरे हरे पेड़ जो खड़े हैं, master work. क्या शानदार स्वामी, क्या काम है। Something tells you there is a God. कोई चीज अंदर बोलती है बिना परमेश्वर के ये हो नहीं सकता है। Amen. He's hung the stars in open space. उसने खाली आसमान में पृथ्वी और नक्षत्रों को यूं ही लटका दिया। From the smallest, tiniest little fly छोटे से कीटाणु या जीव से लेकर to the biggest animal on the earth. पृथ्वी के भारी भरकम जानवर तक It's God's handiwork. परमेश्वर का हाथ की रचना है। Hallelujah. हालेलुया। If we make a kangaroo, यदि हम एक कैंगरू बनाएं, it looks very imbalanced. लगता है बहुत ही असंतुलित है। Down big, small, शरीर down. नीचे बड़ा ऊपर छोटा, But his tail is managing everything. लेकिन उसका पूंछ जो है वो उसके शरीर को संभालता है। Everything what he makes. परमेश्वर ने जो भी कलाकारी से चीजें बनाई हैं, So if I bow down to something which is not God, यदि मैं किसी ऐसे प्राणी या किसी चीज या वस्तु के सामने झुकता हूं जो परमेश्वर है and नहीं, I pray there, और मैं वहां उनसे प्रार्थना करता हूं, then it is I will be blamed, not God. तब मैं स्वयं उसके लिए जवाबदार रहूंगा, परमेश्वर नहीं। Can I pray to this pulpit? क्या मैं इस लकड़ी के पुलपिट से निवेदन कर सकता हूं? To the cross? क्या क्रूस से मैं अनुरोध कर सकता हूं? Don't even bow to the cross. क्रूस जहां बना है उसके सामने भी झुकना नहीं है। We only bow to the name of Christ. हम तो यीशु मसीह के नाम के Hallelujah. सामने झुकते हैं। Amen. आमीन। Even we should not have idols of Jesus also in our house. यीशु मसीह की मूर्त भी, उसकी प्रतिमा भी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। No, for memory, for this नहीं thing. याद के लिए, देखने के लिए। God is a spirit. परमेश्वर वस्तु नहीं, बाइबल कहती परमेश्वर आत्मा है। Amen. आमीन। They who worship God must worship Him in spirit and truth. और जो उसकी उपासना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना करें। Amen. आमीन। So we know who to pray. हम जानते हैं किससे प्रार्थना करना है। To God our Father. स्वर्गीय पिता से करना In the है, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में करना है। Amen. आमीन। How to pray? और प्रार्थना करना कैसे है? Disciples asked Jesus one time. चेलों ने एक बार ये सवाल पूछा। They watched Him very closely. बड़े करीबी से यीशु की जिंदगी देख रहे थे। And they saw something that when He bows on His knees, He communes with God. और वो देख रहे थे जब कभी यीशु मसीह प्रार्थना घुटनों में करते, वो उसका संपर्क पिता से ऐसा अच्छा जुड़ा रहता है। How to pray? कैसे प्रार्थना? They said to Jesus, उन्होंने यीशु से पूछा, teach us to pray. प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। Hallelujah. Amen. आमीन। There is no shame in asking God to help us to pray. परमेश्वर से सहायता मांगने में कोई बुराई नहीं है। Lord, teach us to pray. प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। How to pray? कैसे प्रार्थना करें? By speaking. बोलने के द्वारा। Amen. आमीन। As you're talking to one another. जैसे आप लोग आपस में बात करते हो एक दूसरे से। A sinner can only say God, not Father. एक पापी मनुष्य परमेश्वर को अपना पिता कहकर उद्बोधित नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर बोल सकता है।
what he can pray is this: वो क्या प्रार्थना कर सकता, वो ये है, Lord, have mercy on me. I am a sinner. Please forgive me. हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर तरस खा, दया कर, मैं गुनाहगार हूं। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, How many of us have prayed this prayer before? इस प्रार्थना को यहां बैठे हम लोगों में से कितनों ने इस प्रार्थना को कभी भी किया है? I'm not asking whether you're born in a Christian family. मैं आपसे Christian ये name. सवाल नहीं पूछ रहा कि आप में से कौन कौन मसीही परिवार में पैदा हुआ, नहीं। Have you prayed this prayer any time in life? आप कहीं भी पैदा हो, आपने क्या जिंदगी में इस प्रार्थना को किया है? Have you said like this? क्या कभी भी इस निवेदन को किया है? Lord, have mercy on me. I'm a sinner. हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मैं एक गुनहगार हूं। God will not reject that prayer. इस प्रार्थना को परमेश्वर कभी इनकार नहीं करता है। Amen. The worst sinner can call on God. सबसे भयंकरतम पापी भी परमेश्वर को आवाज लगा सकता है, Like the thief. जैसे स्वर्ग में लटका वो चोर Remember me लटके हुई हालत में बोलता है, when you come into your kingdom. जब अपने राज्य में आए मुझे याद कर रहा है। Amen. Amen. God heard him. प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। Amen. आमीन। We need to repent of our sin and say to God, please forgive me, Lord. हमें अपने पापों से क्षमा मांगनी और प्रभु से कहना है, मैं पश्चाताप करता हूं। And very sure as you and I sitting here, God will forgive you. और जितना ये बात सच है कि आप और मैं यहाँ अभी बैठे हैं, उतना ही सच है कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर क्षमा करेगा। Amen. आमीन। Believers have a privilege to pray to the Father. विश्वासियों के पास में उसे पिता से प्रार्थना करने का सौभाग्य है। Amen. Amen. So now, how should a believer pray? अब एक विश्वासी को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? Not show off prayer दिखावा वाली प्रार्थना नहीं, in the public like the Pharisees, जैसे फरीसी लोग जनसभा में प्रार्थना करते and their lingo is so good. और उनका भाषा शैली इतना शानदार है। Listen, we need to learn to pray. देखिए, हमें प्रार्थना अच्छे करना सीखना है Where to pray, how to pray. कि प्रार्थना कहाँ करें, प्रार्थना कैसे करें। Now if you go to hospital, अभी अस्पताल मान लीजिए आप गए, that fellow is in ICU, कोई आदमी को आईसीयू में देखने गए, and we go there हम पहुंच गए and we begin to pray. और हम प्रार्थना कर रहे हैं, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Glory, glory, glory. हालेलुया, महिमा हो प्रभु। जाग जाए, Either that fellow will stand up, या तो इस प्रार्थना से वो बिछौने से उठ खड़ा हो जाएगा, or the doctor will tell us to get out. या डॉक्टर तुरंत दौड़ के आएगा और आपको बाहर निकालेगा। Bible says, बाइबल कहती है, lay hands on the sick and the sick will recover. बीमारों पर हाथ रखो और बीमार चंगे Amen. हो जाएंगे। How Peter prayed for that Dorcas? कैसे पतरस ने दोरकास के लिए प्रार्थना की? She was dead. वो तो मर गई थी। How he prayed for Aeneas? कैसे वो इनियास के लिए प्रार्थना किया? This man is lying paralyzed for years. एक आदमी सालों से लकवाग्रसित पड़ा है। Now Peter is not struggling. पतरस अब संघर्ष नहीं कर रहा है। You know what he said? आप जानते हो क्या बोलता है? Aeneas, Jesus Christ makes you whole. इनियास, प्रभु यीशु तुझे चंगा करता है। Rise up, friend. उठ दोस्त। Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's the Amen. power of God. ये परमेश्वर की वो सामर्थ है। Amen. Amen. We need to know how to pray. हमें जानना है कि कैसे प्रार्थना करना है। भोजन की प्रार्थना कर दो brother. किसी को बोले भोजन Pray के for लिए the food. प्रार्थना कर दो, खाने के लिए। I'm not telling, I'm not joking. मैं मजाक Fact, नहीं कर I'm रहा telling हूँ, you fact. ये एक सही की घटना है। Food is served on the counters काउंटर में खाना लग गया and nice khushbu is coming. और अच्छी शानदार खुशबू आ रही है। And this pastor was told to pray. और एक पास्टर साहब को निवेदन किया गया कि आप दुआ कर दीजिए। He started from the farmer sowing the seed. उन्होंने शुरू किया, हे प्रभु धन्यवाद हो उस किसान का जिसने बीज बोया। मेहनत किया प्रभु उसने, इतना मेहनत किया, पसीना बहा दिया, पसीना बहाया प्रभु, बहुत बहाया, बहुत बहाया, परिश्रम, बहुत परिश्रम किया। फिर वहां से वो कहाँ गया? वो गेहूं फिर सेठ की दुकान में आया, गेहूं वहां से वहां गया, वहां से प्रभु जिस सेठ की दुकान आया वहां से लिया।
आशीष दे प्रभु। Then he brought it into the home family from where और they प्रभु were. धन्यवाद कि तूने इस परिवार हमारे दोस्तों को वो भोजन दिया। At least 10 minutes he prayed. 10 मिनट कम से कम उन्होंने प्रार्थना की। खाना ठंडा हो गया। Children's birthday. किसी के बच्चे का This is also fact I am telling you. ये भी एक सत्य घटना मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी बच्चे का कहीं जन्मदिन था। So one pastor came, so this is they lit the candle and said, Pastor साहब, एक पास्टर भी आए हुए थे, उन्होंने मोमबत्ती जलाई और कह दिया, पास्टर साहब आप दुआ कर दीजिए। आइए दुआ करेंगे। आइए दुआ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Candle is going खुलिया खुलिया। और मोमबत्ती नीचे घुल रहा। Hallelujah, हालेलुया। खुदा खुदा जिंदा, all things, all attributes of और God. तमाम बाइबल के सारे सिद्धांत। And the child is crying. बच्चा वो मोमबत्ती को देख के रो रहा है। You should know where to pray what. कहाँ पर क्या कितना प्रार्थना करना है जानना है। Amen. आमेन। Somebody, your neighbor, somebody dies there. कोई पड़ोसी किसी की मौत हो गई है। We are having some meeting here. हम मान लीजिए हाँ बगल में मीटिंग कर रहे हैं, अरे consider. उनका भी ध्यान रखें। Amen. अरे मीटिंग है, वैसे सुनो खुदा का वचन जाए। No, no, no. नहीं। Amen. आमेन। Tomorrow you will win them. कल आप जो सम्मान उनको दिए, आदर, आप उनको जीत लेंगे। Amen. Go and stand there with them. जाए उनके दुख के घड़ी में उनके साथ कुछ पल रहें। Amen. मैन। Love your neighbor अपने पड़ोसी से प्रेम कर as your जैसे तू self. अपने आप से करता है। Amen. मैन। How to pray? कैसे प्रार्थना करना है? इतना गला फाड़ दिया कि फिर शाम को विक्स खा रहे जाके। इतना गला फाड़ के प्रार्थना ना करें कि शाम को। Don't pray in somebody else's ear also. और प्रार्थना करते समय ध्यान दे किसी का कान सामने This ना is not microphone. हो। ये कोई माइक नहीं। These are practical things. ये व्यवहारिक चीजें हैं जो ध्यान देने की बातें हैं। No show of prayer. प्रार्थना दिखावा वाला भी नहीं होना चाहिए। Hallelujah. स्तोत्रम करता है। Showing off. पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। I used to stay with one uncle here, Mr. Benjamin. मैं एक अंकल थे मिस्टर बेंजामिन के साथ वहाँ पे रहता When था। I first used to come to the city, जब पहले मैं बिलासपुर शहर में आता था, one of his old friend came उनके एक पुराने दोस्त एक दिन आए and he's asking me how did I pray? और वो मुझसे पूछ रहे थे। नहीं, he's asking uncle. और वो अंकल से, उनके दोस्त अंकल से पूछ रहे थे, चलो बताओ मेरी प्रार्थना कैसी थी। So what he said, my uncle, वो अंकल ने क्या कहा? बहुत चिल्लाया प्रभु के ऊपर। बहुत चिल्लाए हो तुम प्रभु के ऊपर। This is how people are praying. लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। God is not deaf. प्रभु बहरा नहीं है। Amen. Amen. There has to be some respect and honor. वहां पर कुछ आदर, कुछ सम्मान के साथ होना है। If everybody's got a house but no prayer room, huh? और लोगों के पास में घर हैं लेकिन प्रार्थना का कमरा नहीं है। Others will make one room for the devotion. और दूसरे लोग हैं जो विश्वासी नहीं, वो एक उपासना का एक जगह वो लोग बनाते हैं। ऊपर बना लेना एक। ऊपर इसलिए जहाँ जगह है वहाँ बना लें। Amen. आमेन। Jesus said, when you pray, enter into your closet, close the door. यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपने आप को कोठरी के अंदर बंद कर लो और सो जाओ। और बंद हो गई कोठरी तो सोना नहीं है। Others are thinking this fellow is praying like this. दूसरे सोच रहे प्रार्थना वाले कमरे में गया है तो प्रार्थना ही कर रहा है। Suddenly listen what is happening. लेकिन सुनेंगे क्या प्रार्थना हो रही है। ऐसी Which kind of tongues is this one? ये कौन सी अन्य भाषा है? What kind of prayer is this? ये कैसी प्रार्थना है? Whole night prayer meeting? पूरी रात की प्रार्थना। Some people are expert in this one. कुछ लोग सारी रात में एक्सपर्ट हैं। Pastors. पास्टर्स भी
First round, now they will go off to sleep. पहले राउंड में वो When everybody, hallelujah, praise the सब Lord. लोग अभी आए हैं और जोश से प्रार्थना कर रहे Praise हैं, the Lord. This हालेलुया, fellow is having praise good the sleep. Lord, लेकिन कुछ लोग पहले ही नींद मार ली। And when everybody is feeling sleepy, और जब बाकी लोग चिल्ला के थक के उनको नींद आई, this fellow get up. तब ये अभी नींद से जागा। Hallelujah. Glory, Hallelujah. glory, 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 glory. ग्लोरी ग्लोरी। यार यही प्रार्थना करा सुबह तक, और सबको लग रहा सुबह 4 बजे तक तो यही प्रार्थना अकेले और किया। पहले 2 घंटा सोए। So we must know how to pray. हमें जानना है कि हम प्रार्थना कैसे करें। Amen. आमीन। Believers must pray to the Father in the name of Jesus. विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। With something wrong we teach to our children, na? Ishu Papa. हम बच्चों को कुछ गलत चीज सिखा देते, यीशु पप्पा, Ishu Papa. यीशु पप्पा। Ishu not Papa. यीशु इज नॉट पप्पा। Amen. Don't make all that mistake now. मजाक में भी या कोई अच्छा चीज सिखाने के लिए हम बच्चों को ऐसा He सिखा is देते। your savior, your friend. वो आपका उद्धार करता है, Amen. दोस्त है। Amen. There is a Father in heaven. हमारा एक स्वर्गीय पिता है। Amen. Believers must pray to the Father in the name of Jesus. विश्वासी प्रभु यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करें Pray in the Spirit. और आत्मा में करें। Paul says, पौलुस कहता 1 Corinthians 14:15, he says, पहला कुरिन्थियों 14:15, I'll pray with my spirit मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा and I will pray with understanding. और मैं समझ से भी प्रार्थना करूंगा। Meaning, मतलब I'll pray in tongues, मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा, I'll pray with understanding also. मैं बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करूंगा, I'll sing in tongues आत्मा में मैं गाऊंगा and I sing with understanding और also. बुद्धि से समझ के साथ भी गाऊंगा। Amen. आमेन Amen. आमेन। Again, फिर से Ephesians 6 chapter, इफिसियों 6 18th verse. 6:18, Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। How to pray? प्रार्थना कैसे करना है? लगातार. लगातार विनती किया करो। Amen. आमेन। In the Spirit. आत्मा में प्रार्थना। So then what are you saying? Well, I'm not in the Spirit? Yes, तो आप sometimes you क्या are not. करें? आत्मा में क्या हम प्रार्थना नहीं करते? हाँ, कभी कभी हम नहीं भी करते हैं। No. खाने की प्रार्थना कितनी आत्मा में करते हैं? खाने सामने खाना रखा है उस समय जो प्रार्थना होती कितना आत्मा में करते हैं। बरकत दे. Amen. प्रभु बरकत दे। आमीन। Pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करें, Meaning you have to wait till your spirit and God's spirit becomes one. अर्थात जब भी हम विनती या प्रार्थना करें अपनी आत्मा प्रभु के साथ मेल होने तक आप Praying always. और कहता लगातार हर समय प्रार्थना With all prayer and supplication. हर प्रकार से निवेदन In the Spirit. आत्मा में होकर। Amen. आमीन। Thereunto with all perseverance and supplication for all saints. और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। How to pray? कैसे प्रार्थना करें? Pray in the Spirit. आत्मा में। Jude 1:20. Oh, Yahud- this is only one chapter. यहूदा उसका 20वां आयत Read it. पढ़ें। But you, beloved, building up yourselves in the most holy faith, praying in the Holy Ghost. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Amen. आमीन। Praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। The Holy Ghost helps us to pray. पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। The Bible says when we do not know what to pray, Holy Spirit helps us. बाइबल कहती जब हमको मालूम नहीं रहता क्या मांगे, आत्मा आहें भर के हमारी तरफ से मांगता है। So allow the Holy Spirit to help us to pray. पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि आपकी मदद करे प्रार्थना करने में। When to pray? कब प्रार्थना? Pray always. निरंतर हर समय प्रार्थना करें। Amen. आमीन। Have a set time of prayer maybe.
प्रार्थना का एक घड़ी या एक समय आप अलग तय भी कर सकते हैं। Peter and John went to pray at the hour of prayer. पतरस और यूहन्ना उस समय मंदिर गए जब प्रार्थना की घड़ी थी। There is prayer meeting also here. यहाँ पर भी प्रार्थना मीटिंग होती है, So you can come and pray here. यहाँ आप आकर प्रार्थना कर सकते हैं। They went at the hour of prayer. पतरस और यूहन्ना प्रार्थना की घड़ी में आराधनालय गए। Psalm 55, 17th verse says, भजन 55 अध्याय में लिखा है, 17th verse, 17 आयत, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud and he will hear my voice. सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Don't give up in prayer. प्रार्थना में एक पल में हार नहीं मानना। Just because your prayer had not been answered quickly, केवल जल्दी से, इसलिए कि जल्दी से आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, we give up. हम हार मान जाते। No, don't give up. नहीं, हार नहीं मानना। Amen. Amen. Continue to pray. लगातार प्रार्थना जारी रखें। Like Jacob who wrestled with God. जैसे याकूब परमेश्वर से ही लड़ रहा था उसके दूत से, And he held him and he said, I will not let you go और उसने उस दूत को जकड़ लिया और कहा मैं तुझको जाने नहीं दूंगा unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीष ना दे। So pray till you receive a word from God. प्रार्थना करें जब तक आपको परमेश्वर से कुछ वचन ना मिल जाए। Pray till that spirit gets relieved in your life. जब तक आपका वो बोझ उतर ना जाए। Sometimes God will wake you up at night and you're bothered. कभी कभी आपको रात में प्रभु आपको उठा देता और आप चिंता के साथ उठ जाते। There's something that is troubling your spirit. कोई चीज हमारे आत्मा को विचलित करी है। You do not know what to do. और आपको मालूम नहीं कि मैं इस समय क्या करूं। That's the time begin to pray. वो इस समय उठकर प्रार्थना करने लगता Keep है। praying. You do not know what you are praying for. प्रार्थना करें जब आपको मालूम नहीं कि क्या करना है। Maybe there is somebody in need somewhere. शायद किसी जगह में कोई व्यक्ति आवश्यकता में पड़ा है। Someone, God will save him from some accident. कोई व्यक्ति को परमेश्वर दुर्घटना से बचा ले। Amen. आमीन। So keep on praying. प्रार्थना निरंतर। Don't go off to sleep that time. उस समय सोने तुरंत ना जाएं। Because of your prayer that person can be saved. आपकी उस रात्रि की प्रार्थना से Amen. उस व्यक्ति का जीवन बख्श दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. So you have the power. आपके पास आपकी प्रार्थना में ताकत है। What can prayer do? प्रार्थना क्या कर I said सकता prayer है? can do what God can do. मैंने कहा प्रार्थना वो कर सकता है जो करने में परमेश्वर काबिल है। Prayer can give you victory over your enemies. प्रार्थना आपको दुश्मनों के ऊपर जय दिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। Daniel prayed 3 times. दानियल ने 3 बार प्रार्थना की And his enemies knew when he prays. और उसके शत्रु को भी पता था उसका प्रार्थना का टाइम। So they said, let's plan up and throw him and somehow throw him into the lion's den. उन्होंने कहा कि आओ हम इसको सिंह के मांद में डलवा दें। You know, जानते हैं a praying man cannot be handled by even the lions also. कि प्रार्थना करने वाले जन Amen. को सिंह भी नहीं कुछ कर पाता है। Hallelujah. Amen. And they threw him there. उन्होंने उन शेरों के बीच उसे डाल दिया। You know what happened? आपको पता है दानियल The के king साथ came क्या in the हुआ? morning and said, सुबह प फटते ही राजा दौड़ कर आया। Oh Daniel, the God whom you serve has been able to save you. हे दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो तुझको बचाया? The God whom you serve continually. जिस परमेश्वर का तू लगातार उपासना करता है, सेवा करता है, Has he saved you? क्या वो परमेश्वर तुझको शेर से बचाया? There came a voice from the den. सवाल का उत्तर अंदर से आया। Oh king, live forever. हे राजा सदैव जीवित रहे। I am alive. मैं जिंदा हूँ। Hallelujah. God has sent his angels. परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इस मांद में भेजा। That's what prayer can do. प्रार्थना ये कर सकती है। Prayer can lock the mouth of the lions. प्रार्थना सिंहों के Hallelujah. जबड़े को बंद कर सकती है। Amen. Hallelujah. Who is that accuses you? कौन है जो मुंह खोल कर तेरे विरुद्ध बोल रहा Who है? is the one who abuses you? कौन है जो मुंह खोल कर तुझको गाली और अपशब्द बोलता Who is the है? one who curses you? कौन है जो मुंह खोल कर तुझे श्राप देता Who है? is the one who threatens you? कौन है जो मुंह खोल कर तुझको धमकी भरे शब्द
शब्द बोलता Let है, him know we serve a living वो God. जान ले कि हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। He will stop their mouths. परमेश्वर उस मुंह को जबड़े को बंद करेगा। Hallelujah. Hallelujah. He will know there is a living God. वो जान लेगा कि वहां एक जिंदा परमेश्वर राज करता है। Prayer made Daniel always the chief among all the kingdoms. प्रार्थना ने दानियल को उसके पूरे साम्राज्य में सबसे मुखिया बना दिया। Amen. आमीन। Babylonian kingdom, बाबुल का साम्राज्य, Persian kingdom, पारसी राज्य आया, everywhere. एक के बाद एक सब। Daniel was always the head. दानियल हमेशा ऊंचाइयों में ही रहा। Where to pray? Where to कब pray? कब प्रार्थना करनी है, Where? कहाँ प्रार्थना करनी है। Anywhere. प्रार्थना कहीं भी हम कर सकते हैं। Hallelujah. Amen. Walking down you can pray. चलते चलते दुआ में, On the mountains you can pray. पहाड़ के ऊपर जाकर, In the wilderness you can pray. जंगल के अंदर दुआ, In the house of God you can pray. परमेश्वर के घर के अंदर आते ही In the jail like Paul and Silas you can pray. पौलुस और सिलास के समान यदि जेल में है वहां भी प्रार्थना। What a prayer. क्या चीज है प्रार्थना। That brought earthquake in that place. और उनकी प्रार्थना से बड़ा भूकंप भूडोल हुआ, Set the prisoners free. सारे के You can सारे pray from the कैदी। fish's belly also. आप मछली के पेट के अंदर से भी दुआ कर सकते हैं। You can pray while you are traveling. यात्रा के दौरान दुआ कर सकते हैं। Let men pray everywhere. मनुष्य हर जगह जहां भी वो हैं प्रार्थना करे। Amen. आमीन। Pray in the kitchen. किचन में काम करते समय प्रार्थना करें। When you're in the garden, pray. गार्डन में काम करते समय प्रार्थना करें। If the whole church begins to do that, और जब सारी कलीसिया ऐसे प्रार्थना करने लग जाए, revival will not be far. आत्मिक बेदारी को ज्यादा समय नहीं रुकना Amen. पड़ेगा। For whom should we pray? हम किसके लिए प्रार्थना करें? Pray for the sick. बीमारों के लिए करें, Pray for the church. कलीसिया के लिए करें, Pray for the work of the gospel. सुसमाचार के कार्य के लिए प्रार्थना करें, Pray for your enemies, those who work against you. अपने दुश्मनों के लिए जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते उनके लिए प्रार्थना Pray करें, for the government. सरकार के लिए प्रार्थना Pray करें, for the men in authority. अधिकार के पदों में बैठे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। Bible says so. बाइबल ऐसा निर्देश हमें देती I है। don't know whether any other book says like that. मुझे नहीं मालूम कोई और अच्छी किताब में भी क्या ऐसा लिखा है या नहीं, But Bible does say, लेकिन बाइबल हमको आदेशित करती pray है for the rulers of your city. कि तुम्हारे ऊपर जो शासन करते हैं उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करो। What shall we pray? हम प्रार्थना क्या करें? Anything. हम जो कुछ भी मांग सकते हैं। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Matthew 21:22 says, मत्ती 21 के 22 में लिखा है, and all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। Amen. आमीन। Don't give up. प्रार्थना में हारना नहीं है। Mark's Gospel 11th chapter, मरकुस 11 24th verse. और उसके 24 में लिखा है, Therefore I say unto you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it, you shall have them. कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Very simple thing which every believer can do. एक बहुत ही सरल चीज है जो कोई भी विश्वासी कर सकता है। Prayer will change our countenance. प्रार्थना हमारे चेहरे का रूप बदल सकता है। Amen. आमीन। Moses came from God's presence, his face shone. मूसा परमेश्वर की हुजूरी से निकल के आया और उसका चेहरे में चमक थी। You cannot be bitter against anybody when you're coming from God's presence. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते, आप किसी के लिए भी कड़वाहट रख के नहीं आ सकते हैं। Amen. आमीन। Because who shall ascend into the hill of the Lord? क्योंकि कौन परमेश्वर के उस पर्वत पे चढ़ सकता है? He who has clean hands and pure heart. वो जिसके हाथ शुद्ध हो, जिसका दिल साफ हो। Some fellow prayed for 40 days fasting. कोई व्यक्ति 40 दिन के उपवास की प्रार्थना किया After the prayer is over, और प्रार्थना खत्म होने के बाद he had a terrible fight उसका एक लड़ाई हुआ with another colleague of his. अपने एक साथी सेवकगण के साथ।
Even they came to blows. और इतना कि वे लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने तैयार थे। I do not know which God he was praying to. मैं नहीं जानता कि कौन से परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था, Or whether he is just praying for the sake of praying so that people will know. या फिर केवल प्रार्थना के लिए कर रहा था कि लोग जाने कि वो Prayerful man's attitude will change. प्रार्थना मनुष्य के आचरण को बदल देता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Wait on the Lord. प्रभु की बाट जो है Something good will happen. कुछ अच्छा होगा। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. Some people have got self-righteous prayer. कुछ लोगों के पास में आत्मधार्मिकता वाली प्रार्थना होती है। I am not like others. प्रभु मैं दूसरों के समान नहीं हूँ वाली प्रार्थना। That Pharisee came right in front. वो फरीसी तो सामने आ गया प्रार्थना करने। No, they are not Pharisees, they are pastors. Right in front. बिल्कुल सामने आ गया। He is also praying to the same God. That fellow is also praying at the same God. वो भी उसी Publican. परमेश्वर से, और चुंगी लेने वाला आदमी भी उसी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। And the Pharisee prays like this. फरीसी की प्रार्थना ऐसी थी, Lord, I am not like others. हे प्रभु मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ। किन 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 गिटार बजाते हैं। और हम गिटार बजाते हैं। I am not like them. मैं उनके समान नहीं। I give my tithes. मैं अपना दशमांश देता हूँ। Of everything I have. सब कुछ जो मेरे पास है उसका 10वां भाग। जीरा का भी दे देता हूँ। जीरा का भी देता हूँ। कितना लाते हैं जीरा? एक बोरी लाते हैं कि घर में? 10 ounces of जीरा। उसका भी 10वांश। Everything. सब चीज। I fast twice a week. सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। And also, Lord, और प्रभु I'm not like that man. वो जो चुंगी लेने वाला खड़ा है, प्रभु मैं उसके समान नहीं हूँ। Are we like that? क्या हम ऐसे प्रार्थना We may not pray like that, but हो सकता is a है heart वैसी attitude like this. प्रार्थना ऐसे नहीं करते, लेकिन क्या हमारे हृदय का आचरण दूसरों के प्रार्थना के प्रति ऐसा होता है? What does the people think? What are these? कि ये क्या है? मैं जो हूँ। Sin has got the biggest thing in between his eye. और पाप शब्द में जो सबसे बड़ा अक्षर इंग्लिश में आई है, S I मैं। N. What it needs to be done? क्या किया जाना है? That I has to be turned into O. उस आई को मोड़ कर ओ बनाना है। Become a son of God. और परमेश्वर के पुत्र बन जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Pride God will not answer. घमंड का उत्तर प्रभु नहीं देता। That Pharisee, he prayed with himself, God did not hear him. फरीसी अपने आप से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। Last at the back, publican was sitting. और पीछे में He wouldn't lift his head. जो चुंगी लेने वाला अपना सिर भी नहीं उठा के प्रार्थना कर रहा, Smote his breast. अपने छाती को पीट कर, It's me, O Lord. प्रभु व्यक्ति मैं हूँ, I stand in the need of prayer. मुझे प्रार्थना की जरूरत है, Have mercy on me. मुझ पर दया कर। Bible says, बाइबल कहती this man went home justified. ये आदमी की प्रार्थना प्रभु ने सुनी और वो धर्मी ठहराया गया और घर गया। Presence of God will cleanse us. परमेश्वर की उपस्थिति हमें साफ कर देती। Amen. आमीन। And when we commune with God, और जब कभी हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, God is holy. परमेश्वर पवित्र है। Amen. आमीन। We will become holy also. हम भी पवित्र बन जाएंगे। Amen. Amen. Spend more time with God. परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। Even in your work and your, whatever you're doing, pray आपके to God. नौकरी के जगह में भी आप कुछ काम कर रहे तो भी Begin to walk and pray. चल कर भी प्रार्थना करते हुए चले। In January, we will have fasting and prayer. जनवरी महीने में उपवास और प्रार्थना हम करेंगे। Then God will change me first, परमेश्वर मुझे पहले बदल दे, and then the congregation. तब
दूसरों को। Amen. आमीन। But without prayer, लेकिन बिना प्रार्थना के nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। Jesus prayed whole night. यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना He करते। used to get up early morning before people could rise, and he would go to jungle and pray. लोगों के उठने के पहले ही वो पहाड़ों में जाता, व्याबान में प्रार्थना करता था। When he returned, जब वो लौट कर आता था, with his presence, demons were running off. केवल उसकी उपस्थित होने मात्र से दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकल जाती थी। There is so much power in prayer. प्रार्थना में ऐसी जबरदस्त सामर्थ्य है। Prayer can change things, चीजों को, परिस्थितियों को बदल सकती, situations, परिस्थितियां बदल सकती, governments. सरकारों को भी बदल देती। By faith, विश्वास से all things are possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. And you and I have the greatest privilege to go to God और मेरे और आपके पास में सबसे बड़ा सौभाग्य प्रभु के पास जाने का, directly. सीधा जाने का। Amen. आमीन। Amen. Amen. We are not going through that what is that through saints and intermediate other people. हम संत के माध्यम से या किसी व्यक्ति के जो मर गया है या जिंदा, उसके माध्यम से नहीं, परमेश्वर। We are entering into God's presence for the new and living way. हम एक जीवित और नए मार्ग में प्रवेश करते हैं। Jesus has opened the way for us. यीशु मसीह ने वो मार्ग हमारे लिए खोला है। And you know something? और आप जानते कोई बात, Jesus himself is praying for us. यीशु मसीह खुद भी हमारे लिए दुआ पिता से कर रहे हैं। That's why we are saved. इसीलिए हम बचे हुए हैं। Amen. Amen. Otherwise Satan would have washed us off. अन्यथा शैतान हमें कब का मिटा दिया होता। Amen. आमीन। Be where God's people are. वहां रहें जहां प्रभु के लोग हैं, You will be safe. आप सुरक्षित रहेंगे। Amen. आमीन। So make this your point. इस बात को अपनी बिंदु बना ले। This year, इस साल my house will become a prayer house. मेरा घर प्रार्थना वाला घर हो जाएगा। Amen. आमीन। Husband, wife come together, pray. पति पत्नी एक साथ बैठकर भी प्रार्थना करें। Family come together and pray. परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करे। There is nobody there, you pray alone. कोई वहां नहीं है, आप अकेले भी प्रार्थना करें, But don't stop praying. लेकिन प्रार्थना बंद ना करें। Amen. आमीन। You begin and you will see how your prayer life will increase. आप आरंभ करें और आप पाएंगे कैसे आपका आत्मिक जीवन बदल रहा है। Amen. चलिए भाई जी। आइए अपने सिरों को हम प्रार्थना में झुकाएं।